अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और रियासत में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपकी मेज़बान इरम चौधरी। एक बार फिर से हम मौजूद हैं आवाम की अदालत में। आवाम के साथ बात करेंगे, जाने की गैस का बहरान दिन ब दिन शिद्दत अख्तियार करता जा रहा है। हुकूमत की जानिब से कहा गया था कि गैस में कमी होगी और गैस दस्तयाब होगी आवाम को दिन में 3 बार, लेकिन इसके साथ साथ एलपीजी की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है। सिलेंडर भरवाने के लिए लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है, क्योंकि सिलेंडर भरवाने के लिए जितनी कीमत इस्तेमाल की जा रही है, लोगों का बजट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। और इसके साथ साथ मामूलाती ज़िंदगी, रोज़मर्रा ज़िंदगी में महंगाई के जो मामलात हैं वो जूं के तूं हैं। और अब सर्दियों में गैस की जो शॉर्टेज है वो आवाम को किस कदर गरा गुजरी है, इस हवाले से बात करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की हुकूमती पॉलिसीज़ आवाम के ऊपर उसके असरात किस तरीके से असर अंदाज हो सकती हैं और आवाम का इस हवाले से क्या कहना है। आया कि वो वाकई इंतज़ार करने के लिए तैयार हैं, जो कि सख्त फैसले लिए गए हैं उनके समरात उनके सामने आ सकेंगे या नहीं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ जर्नलिस्ट मौजूद है, अरशद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। How are you, ma'am? Pardon me? आप ठीक हैं, खैरियत से? How are you? I'm great. I'm great. I'm talking about the policies and the decisions of Prime Minister Imran Khan. So, what you think? How many difficulties he is facing after his decisions? Okay, I've been here about 2 months and flying back to USA in 2 weeks, inshallah. And I've been myself talking as a journalist, and I gave you my card. We have a media company in USA. I'm an American Muslim of Pakistan origin journalist, all-time here journalist also. I've been talking to TLP and Fiqh Jafriya and Fiqh Sunnah and these folks and that folks and Rana Market and Sitara Market and all over, Lethrar and so forth. The crux is that there is an economic cancer at this time. Economic cancer. How can you see economic cancers in? Because people are, I'm talking with people who are in Jinnah Super, who are in jean and blouse, ladies. Islamabad Association, Islamabad Bar Association, I go there, I have friends. So from there all the way up to Lethrar and myself, I'm suffering. I make, alhamdulillah, good money. And it's very difficult now for 90% of the folks in Pakistan to pay their bills. The upper crust, the 5% upper crust always was elite mafia. The grade 20 and above, the MNAs, MPAs, senators, the industrial lords, the feudal lords and the mullah lords. The mullah both, Fiqh Sunnah and Fiqh Shia both, they are all having fun at the taxpayers' expense. Now Mr. Imran Khan, and we discussed, I was in FBR, I talked with people in FBR, I talked with Shabbar Zaidi, he is ex-FBR, he called me from Karachi. The solution is to stop this, and you have to stop this economic cancer, otherwise people like Mr. Zaidi will come on the line. And it's a disaster for these folks, for you. The only way is to force this 5% upper elite mafia, which I explained. The MNAs, MPAs, senators, grade 20 and above, the mullah lords, mullah both, Shia and Sunni both, the industrial lords and the feudal lords, my relatives. You have to force them at gunpoint. Mr. Imran Khan has the power to force them at gunpoint to pay tax. None of these people are paying any tax. I know them personally. And you know them personally. After getting tax amount, you can say dollars will come in. Billions of dollars will come in. This is the first step. The second step is Imran Khan has to fight with World Bank. World Bank doesn't give a hoot about Pakistan. World Bank and IMF is against Islamic Republic of Pakistan. We know that. I'm based there. We know that. About the agendas of IMF and Pakistan is facing as it is factor issues in the problems. Exactly, ma'am. I know that. Way back, I was in some place here meeting Yakub Khan 35 years back, and Pakistan has the very powerful military and high technology, very high electrical, mechanical, laser, missile technology. World Bank, IMF are against, and United Nations are against anything to do with Islamic countries becoming powerful, financially or militarily. Very simple. We know that. Imran Khan knows that. He's a smart cookie. He's no dummy. He knows how to talk, but he's not talking. Tareen is not going to talk for us. Tareen will not. Tareen himself is a corrupt bureaucrat, not a bureaucrat, feudal lord. So Tareen is not going to represent you and me and these folks. He has to go back to people like Asad Umar. I never met the gentleman, but people like him
or maybe a few more honest. And you know about the words of Asad Umar when he said, I will see all the journalists, all the puppet journalists who are talking about us, about our government, and we will beat those journalists. Ma'am, journalists have always been attacked. I was criminally assaulted in the Parliament Press Gallery. There was a very famous federal case here. I prosecuted them in the Islamabad courts. I got them arrested. They were sitting in the and it was a very famous case. So journalists, if you are... My point is, my question is, was Prime Minister Imran Khan has the good team or all members who is involved in the team, who is facing the all issues and deliver the all things? Ma'am, you folks and myself are journalists. We have to make accountable the people who have the power of the gun and the power of the money. So everyone will be against you and me and our photographer. Accept that. In USA, I do the same thing. Trump lost the election because he insulted journalists. We told him, journalists represent the public. Journalists do not represent your owners. I was with Hum TV's owner, Siddiqui's, I told them the same. I told Malik the same. I told Khalid Asar, he's a very famous owner of Telecom. These are all my old friends. Shortly way to solve all the problems. In your view, if the tax collection is going smoothly, then all the issues will be solved soon. We are taxpayers in Pakistan. We've been paying it 40 years. This year we paid about 3 lakh in Pakistan to FBR. And we're getting a refund over that. So we paid more than that. Tax collection is not the issue. The issue is what I explained. At gunpoint, take the tax. Imran Khan has to force the tax on the top elite 5% mafia of MNAs, MPAs, senators, 20 grade and above. Everything is free. Each 20 grade and above, civil and military, cost you and me 1 crore rupees per month overall. And mullah lords, Sunni and Shia, they are all making billions of rupees. And industrial lords and feudal lords. Take the money at gunpoint, only then you will have, this is the way in Islam, this is the way in democracy, man. Okay. I rest my case. Thank you so much. ये जो इन्होंने सलूशन बताया कि ये जो 5 बड़े लोग आते हैं जिनसे टैक्स कलेक्ट किया जाए, माफिया से टैक्स कलेक्ट किया जाए, तो फिर जो है ये मसाइल हल हो सकती हैं। ये मसाइल चाहे महंगाई के हों, गैस की शॉर्टेज के हों, IMF से कर्जे लेने के हवाले से हों, ये दीगर जो मसाइल हैं उन तमाम मसाइल का हल यही है कि माफिया से और दीगर जो लोग हैं जो साहिब हैसियत हैं, फ्यूडल्स हैं, इन लोगों से टैक्स कलेक्ट किया जाए। और जब टैक्स का पैसा आएगा तो बहुत सारे मसाइल जो हैं वो हल होते भी नज़र आएंगे। लेकिन अभी के जो मसाइल हैं वो किस तरह से हल हो पाएंगे, उनका सोल्यूशन किस तरीके से निकलेगा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जब आप आती हैं, घर से बाहर निकलती हैं, तो गैस होती है, नाश्ता वगैरह करके आता हूँ मैं, सॉरी मैंने वही बताया, जब आप घर से आते हैं, बाहर दुकान पे आती हैं, काम के लिए घर से बाहर निकलते हैं, तो गैस होती है, नाश्ता वगैरह खाना वगैरह बनाने में कुछ दुश्वारी है या स्मूथली सिस्टम चल रहा है आपका? नहीं जी, बहुत प्रॉब्लम होती है, गैस ना होने की वजह से नाश्ता कर ही नहीं सकते। गैस अब आपकी तरफ भी नहीं आ पा रही? नहीं आ रही। और क्योंकि बहुत सारे लोगों से ऐसे बात हुई है जिनके एरियाज में आ रही है। मिडनाइट्स में आती है, उस टाइम जो है ना खाना शाना पक जाता है, फिर सारा दिन ओवन में गर्म होता रहता है, रोटियाँ बाजार से लेके आते हैं, चाय नहीं पी सकते, घर चाय नहीं बन सकती। चाय के साथ साथ दीगर मामलात भी सर्दियों में बहुत सारे काम के लिए जो है वो गैस की दस्तयाबी होती है, तो इसका हल आपको क्या लगता है क्या निकल सकेगा? आप लोग अगर अपने तौर पर निकालना चाहें, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो कहा है कि 3 वक्त दस्तयाब हो। नहीं, गवर्नमेंट तो खाली दावा ही कर सकती है, इसमें यही है लकड़ियाँ जलाएंगे, फिर लकड़ियाँ जलाएंगे, सिलेंडर का इस्तेमाल जी बिल्कुल, सिलेंडर, उससे मजीद अखराजात के ऊपर बोझ पड़ेगा जी। आपने वोट किसे दिया था? हमने दिया था जी PTI को। PTI को वोट दिया था। वो कह रहे हैं कि थोड़ा वेट करें, ये जो पॉलिसीज हैं हमारे, इनके समरात हैं, थोड़ा वक्त गुजरने के साथ मिलेंगे। ये तो वेट ही कर रहे हैं, वेट करते करते हमारा वेट खत्म हो जाएगा। तो माशाल्लाह से वेट आपका अभी भी सही है, मजीद आप वेट करने की कैपेसिटी। बात ये है ना कि जो जिस तरह से महंगाई हो रही है, गरीब आदमी पिस रहा है, अखराजात पूरे नहीं हो रहे, बिल पर मंथ जो है इतने ज़्यादा बिल आ रहे हैं कि बंदा जो है खाने को सोचे या बिल को सोचे, तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और ये मज़ीद खर्चा बढ़ जाएगा, 2 वक्त का खाना जो है वो 1 वक्त में आ जाएगा। ठीक है, 2 वक्त का खाना 1 वक्त में आ जाएगा। और इसी तरीके से कहा गया कि मसाइल, अवाम का कहना है कि मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। कुछ और लोगों से भी बात करते हैं।
कुछ लोगों से बात करेंगे, जानेंगे गैस बहरान के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आंटी, गैस आ रही है आपके घर में? कोई गैस नहीं आ रही। कब आती है? आती नहीं है, बिल्कुल गायब है। वो जिस तरह आप गैस के चूल्हों के पास खड़ी थी, मुझे लगा शायद गैस घर में नहीं आ रही, तो कोई ऐसा चूल्हा देखने आई है जो गैस की बजाय ऑटोमेटिक कोई सिस्टम हो। नहीं आ रही, किसी चूल्हे में नहीं आ रही। गैस का मीटर भी नहीं लगा हुआ। जाते हैं दफ्तर में, बात ही नहीं सुनते हैं गरीबों की। तो ये तो अच्छा है ना, गैस का मीटर नहीं लगा तो गैस नहीं भी आएगी तो आपको इतनी तकलीफ है। 250 रुपए किलो किधर से रोज भराए? आटा महंगा हो गया है, 2000 रुपए किलो आटा हो गया। मान गरीब किधर जाए? लेकिन पहले बता दिया गया था कि गैस की लोड शेडिंग होगी और 3 टाइम मिलेगी, जैसे डॉक्टर की दवाई नहीं मिलती सुबह दोपहर शाम की। बिल्कुल भी नहीं, मीटर भी नहीं लगा हुआ। हम जिधर रहते हैं वो माले मकान कहता है बाप आके आगे, बात ही नहीं सुनते, आगे से दबाव नोटिस ही नहीं दे रहे। गरीब किधर जाए? अभी मैं घर का रेंट पूरा करूँ, घर का राशन पूरा करूँ, गैस का बिल दूँ, 250 रुपये किलो गैस हम कहाँ से पूरी करें? किराया भी मकान का है, हमारा कोई घर नहीं। इधर जाते हैं लोग, घर में बैठे हैं, किराया इतना ज़्यादा मांगते हैं। ना नौकरी है, ना कोई घर है, ना कोई कारोबार है, बस दुआएं दे रहे हैं। वोट किसको दिया? इमरान खान को दिया। तो वो तो कह रहे थोड़ा इंतजार करें, सब कुछ इंतजार 4-3 साल हो गए हैं अभी। इंतजार किस चीज का करें? किस चीज का इंतजार करें? अच्छे वक्तों का, महंगाई कम होने का, गैस मिलने का। जिंदगी का किसी को कोई पता नहीं है तो इंतजार किस चीज का करें? सांस नीचे जानी है, वापस आनी है, ये इंतजार करें? जिंदगी का कोई पता नहीं है ना। क्या पैगाम देना चाहिए? यही चाहिए बस, गरीबों के लिए सहूलत करें, घर दे दें, गरीबों को ये मुश्किल मसाइल सारे हल कर दें, बस यही कहते हैं। और काम नौकरियां ढूंढने, किसी के घर जाते कहते कोरोना जाओ, वरना पहले नौकरी अच्छी भली कर लेते थे, 20-25 हज़ार तनख्वाह मिल जाती। अभी 5,000 भी महीने का नहीं है हमारा कारोबार। क्या किधर जाए? किधर जाए गरीब गुरबा? इमरान, हाँ इससे अच्छा तो ये जो नवाज शरीफ अच्छा था, बेनज़ीर भुट्टो थी अच्छी, गरीबों की हेल्प तो होती थी, इमदाद भी मिल जाती थी, वजीफा भी मिलते थे। ये बैठा हुआ है, इन्हें गरीबों को पता कि इतना ज्यादा दुआएं दे रहे हैं, बस इसको और कुछ नहीं कर सकते। अभी क्या करें? वो जो गरीबों का खून चूस रहे हैं, वो 10 रुपए की महंगाई होती तो लोग 30 रुपए कर देते। स्टाफ 30 रुपए किराया कर दिया है, तो जो किसके पास 30 रुपए ना हो तो वो खड़ा रहे स्टाफ पे। जिसके पास जो गाड़ी भी ना हो, कहते पेट्रोल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा, गरीब को इधर जाए। गरीब को मारे, जिधर जाओ गरीबों को बस लिताड़ रहे हैं, मार रहे हैं, भूखे मार रहे हैं। अमीरों को क्या, उनको सब कुछ मिल रहा है, गरीबों को कुछ भी नहीं मिल रहा। हमें तो कहना है इमरान खान को हमें घर दे दे, को बना बनाया, सारी जिंदगी उसको दुआएं देंगे। हमारे पास ना घर नहीं, इधर किसी हमारे गांव में भी नहीं है हमारा घर, पूरे मुल्क में नहीं है घर। ये आवाम की आवाज़ है और पैगाम है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के लिए। मज़ीद लोगों से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपके घर में गैस आ रही है? सर्दियों में तो अमूमन कम आती है, बहुत ज़्यादा। सुबह तो नाश्ता भी नहीं बनता, दोपहर को तो कभी कभार सही हो जाती है, लेकिन कभी नहीं आती। आजकल जो गैस का बहरान चल रहा है, बहुत ज़्यादा परेशानी की सूरत हाल है। आवाम के दरमियान में हम मौजूद हैं जानने के लिए कि वो आपको कितनी मुश्किल और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बस गुजार रहे हैं, सब लोग गुजार रहे हैं। सिलेंडर यूज़ करती हैं, बच्चों ने स्कूल कॉलेजेस जाना होता है, क्या तरीका है? सिलेंडर यूज़ करते हैं। सिलेंडर यूज़ करने से मतलब अखराजात में कोई फ़र्क पड़ा? जाहिर है, गैस तो वो तो महंगी है, 250 रुपए किलो है। ठीक है, तो क्या पैगाम क्या देना चाहेंगे आप? तो इस हुकूमत को हम क्या पैगाम दे सकते हैं? ये तो वो क्या कहते हैं, स्टेब्लिशमेंट के गोद में बैठी हुई है। अच्छा, नहीं, आवाम की मुश्किलात से निकालने के वाले उन्होंने कहा थोड़ा सा इंतजार करें। और भी आवाम को इसने मुश्किल में डाला है, मजीद मुश्किलात में। तक ये जर्नल और वो रहेंगे, ये नहीं। आपने वोट किसको दिया? मैंने वोट इमरान खान को दिया था। वो भुगत रहे हैं ना, जो वोट दिया था इमरान खान को, वही अब भुगत रहे हैं। अब आप लोग जब अपने ग्रुप में बैठते हैं, आप जनरेशन आपस में इकट्ठे होती है, वो तो यंग जनरेशन के फेवरेट है, मतलब उनको मोटिवेट करना चाहती हैं, उनको आगे लेकर। और असल में इतना टाइम गुजार के देख लिया है ना, तब वो फेवरेटिज्म भी खत्म हो चुकी है। कह रही हैं कि इतना टाइम तो ये बहुत सालों का सिलसिला इकट्ठा हुआ है, कर्जे लेना, मुल्क के मामला चलना, पॉलिसीज ऐसी बनाना, अब वो एकदम से ठीक कुछ ना कुछ हालात, कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट तो आ सकते हैं ना। इधर तो हम इम्प्रूवमेंट भी नहीं देख रहे, इवन जो पहले वाले हालात थे उससे भी ज्यादा जो है अब हम बदतर हालात देख रहे हैं। जितना इस हुकूमत ने कर्जा लिया है ना, उतना ही अवाम को इसने और भी वो अवाम घिस गई है बहुत ज्यादा।
बहुत ज़्यादा मुश्किल में पड़ गई है। आप लोगों की ये जो थिंकिंग है, क्योंकि यंग जनरेशन को बहुत ज़्यादा यूथ को बहुत प्रमोट करती हैं वो, तो आप लोग क्या मैसेज खुद भी करते थे। अब हम यही कहेंगे कि थोड़ी सी कुछ तो हालात में जो है इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए ना, क्योंकि अब इतना टाइम तो हो गया उनको ना, उनकी हुकूमत को इतना टाइम हो गया कि हम कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट तो देख सके ना। मजीद वक्त देने का है हौसला, मतलब है? हौसला तो बिल्कुल अब खत्म हो चुका है मजीद, क्योंकि हर तरफ इंतजार का कोई भी चांस नहीं, अब तो नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि हम कोई इम्प्रूवमेंट देख ही नहीं रहे ना। जाना चाहिए अब इसको उधर बरतानिया जाना चाहिए। ठीक है, आपका कहना है कि उनको घर जाना चाहिए। मामलात क्या चल रही हैं, कि आवाम की आवाज़ है और आवाम से हम बात कर रहे हैं, जान रहे हैं कि गैस की दस्तयाबी है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपके घर में गैस आ रही है? अल्लाह का शुक्र है, हमारी गैस तो बहुत अच्छी आ रही है। किस एरिया में आप रहते हैं? हाँ जी, ये लतरार रोड पे रहते हैं। लतरार रोड, अच्छा, फराज टाउन में वो, वहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखी है गैस की, तो बड़ी कंप्लेंट्स वगैरह करवाई थी, तो हमारी माशाल्लाह भी गैस, तो पूरे मुल्क पे गैस का बहुत ज़्यादा मसला है, लेकिन हम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था हमारा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब थोड़ा बेहतर है। अभी तक तो बेहतर है, अभी देखे बारिश होती है तो उसके बाद शायद प्रॉब्लम हो जाए। जैसे रिलेटिव्स में जब आप कॉल करती हैं, फोन पे बातचीत होती प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है, हर जगह पे प्रॉब्लम है, हर जगह प्रॉब्लम है। तो उसका आपको क्या लगता है कि क्या सद्देबाब होना चाहिए? क्योंकि बच्चों ने स्कूल कॉलेजेस, घर वालों ने जाना होता है, अगर 3 टाइम गैस की दस्तयाबी होगी तो गुजारा हो सकेगा सख्त सर्दियों में? देखिए 3 टाइम अगर दस्तयाबी होती है तो कम से कम लोग खाना तो खा सकेंगे ना। जो बेसिक आपका जो नीड है ना, वो आपका खाना है, खाना तो खा सकेंगे ना आप। यानी कि आपने कहा कि 3 टाइम की भी दस्तयाबी जो कहते हैं कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ओके, ठीक है जी। एक ये रहने से ना, भूखे रहने से, या आप सर्दियों में मिसाल के तौर पे अगर ठंडा रह सकते हैं लेकिन कल भूखे नहीं रह सकते। कहना है, इनका कहना है जी भूखे रहने से बेहतर है वाला ऑप्शन मेरे ख्याल में ठीक है, बहुत है। इनका जो व्यू सामने आया है वो ये है कि 3 टाइम वाला ऑप्शन बेस्ट है, ना होने से कुछ होना बेहतर है, और कुछ मतलब मिल जाए उससे गुजारा हो जाए, वो थोड़ा सा ना होने वाली सिचुएशन से बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम। मैं ये गुफ्तगू कर रही थी, बड़ा मुस्कुरा रहे थे ये, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपके घर में या आपके मामलात जो है वो गैस के बगैर चल रही है या गैस की दस्तयाबी है आपकी तरफ? गैस के बगैर अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है गैस के बगैर भी चल रहे हैं जी। सर्दी गर्मी मतलब कोई भी मसाइल हैं, आपको लगता है कि ये ठीक हो जाएंगे? इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, उम्मीद है। उम्मीद है इंशाल्लाह। दिहाड़ी कितनी लगा लेते हैं आप वैसे दिन? बस शुक्र है, कभी 500 निकल रहे, कभी 600 निकल रहे हैं। गुजर बसर आसानी से इंशाल्लाह हो जाए। ये कह रहे हैं कि गुजर बसर आसानी से हो रहा है। आप बताइए, आपका गुजर बसर आसानी से हो रहा है? इंशाल्लाह, अल्लाह कर रहे हैं ना। वोट आपने किसको दिया था? वोट आज़ाद को दी थी। वोट आज़ाद को दिया था, माशाल्लाह शुक्र का कलमा अदा कर रही है। तो मेरा ख्याल है कि ये पैगाम भी एक जाना चाहिए कि यहाँ से एक शुक्र का कलमा भी निकल रहा है। एक आंटी मेरे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाहर से चिप्स लेके खा रही है, घर में गैस नहीं आ रही है? नहीं, हमारे घर में तो वैसे सिलेंडर जला रहे हैं। सिलेंडर आजकल बहुत महंगा है। अच्छा, बहुत महंगाई है, तो गैस नहीं आती वहाँ? नहीं, गैस है मगर ये है कि हम सिलेंडर जला रहे हैं, हमारे घर में गैस नहीं लगी। तो सिलेंडर को रिफिल जो करवाया जाता है इजी है? मतलब आपने क्या महंगा तो है, तो वो कितने दिन गुजारा कर लेते हो? 15 दिन। 15 दिन गुजारा? अभी 2600 का आया है और 15 दिन निकलेगा। तो पानी गर्म करना, चाय बनाना, सर्दियों के तो और बहुत सारे काम होते हैं जो करने हैं, मेहमानदारी भी करनी होती है, तो उसमें मुश्किल आपको लगता है? मुश्किल होती है, हर चीज़ में मुश्किल है। बिजली के बिल है वो इतनी मुश्किल है, जब धोते हैं तभी बिल आता है, ना धोए तभी बिल आता है। सोचा था कि ऐसे गैस नहीं होगी, सिलेंडर फिल करवा के तो गुजारा करना पड़ेगा? नहीं, हमने असल में वापडा में थे, वापडा में सारी ज़िंदगी हमने बिजली जलाई है, उसके अलावा हमने सिलेंडर नहीं जलाया। सिलेंडर नहीं जलाए, ठीक है। ये आप मैसेज क्या देना चाहिए? मैसेज यही है कि महंगाई बहुत है, बस और कुछ नहीं। महंगाई कम करने के लिए मैसेज है? हाँ जी, बस गरीबों को एहसास करने के लिए? एहसास करने के लिए। और वो अगर कहें कि थोड़ा सा इंतजार करें तो हो जाएगा? इंतजार फिर यही है कि 5 साल से इंतजार ही कर रहे हैं। वो तो कह रहा था कि 15 महीने में हो जाएगा, मगर हो नहीं रहा। अच्छा जी, इनका कहना है कि इंतजार हो नहीं रहा। मज़ीद लोगों से भी बात करते हैं, जानते हैं उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। पढ़ती हैं आप? नहीं, मैं जॉब करती हूँ। जॉब करती हैं, सुबह नाश्ते के साथ जाती हैं, नाश्ते के बगैर? बगैर जाती हूँ। क्यों बगैर क्यों जाती? लाइट नहीं होती। अच्छा, लाइट नहीं होती, बिजली नहीं होती, गैस तो होती है? गैस होती है, लाइट नहीं होती।
तो अब वैसे तो यही सुनना है, जो हम प्रोग्राम भी कर रहे हैं, लोगों से भी जान रहे हैं कि गैस काफ़ी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। 3 वक्त का उन्होंने कहा है कि 3 टाइम मिलेगी, 3 टाइम से ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं करनी, बचत भी होगी, बिल भी कम आएंगे, हादसा से भी बचेंगे। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसे ही होना सही चाहिए। है। वोट आपने किसको दिया था? मैंने दिया था नवाज शरीफ को और इमरान को तो नहीं दिया। इमरान खान साहब को नहीं दिया था। अभी क्या पैगाम देना चाहेंगे? मुल्क की सूरत हाल आपके सामने है, बाहर जाती हैं, जॉब करती हैं, बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना होता है। ऐसा ही है, देखिए अब लोगों ने जिस लोगों ने दिया है उनको वोट, उनका फ़ायदा नहीं हुआ देने का। अब वो देखिए वो इस चीज़ को फेस कर रहे हैं ना कि इसको वैसे आपने नहीं दिया था, फिर भी आप भी देखिए मैंने नहीं दिया ना, तो देखिए मुझे उस चीज़ पे प्राउड है कि मैंने उनको वोट नहीं दिया। लेकिन रहे फिर भी आप पाकिस्तान में पाकिस्तान में रह रही हूँ, लेकिन अगर मैं देती तो देखिए ना उन सब चीज़ों के साथ मैं भी उनके साथ भी फेस कर दिल तो दे के भी आपका दिल दुखता, ना दे के आप कह रही हैं कि थोड़ा सा मुझे ना देखे खुद को मुझे तसल्ली है कि मैंने उनको वोट नहीं दिया। लोगों को देखते हुए, उनके मसाइल देखते हुए आपको क्या लगता है, क्या मैसेज देना चाहिए? यही कि इमरान खान ने जो अपने फैसले करने का उन्होंने जो भी कहा था कि मैं करूँगा, उनको वो करना चाहिए, क्योंकि लोग उसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि हमने वोट दिया था लेकिन उस पर कोई इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आ रही उनको कुछ भी। ठीक है जी, इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आ रही है। जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कहा था उनको उस हवाले से पूरा करना चाहिए, वो मामलात वो बातें वो पूरी होंगी तो बेहतरी आएगी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप सुबह दफ्तर जाती हैं मामूलात ज़िंदगी के लिए, जब सुबह घर से निकलने लगती हैं नाश्ता करके जाती हैं? जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है। गैस आ रही है आपके घर में? बिल्कुल आ रही है। किस एरिया में रहती हैं? हम रहते हैं पिंडी वेस्टेज में। पिंडी वेस्टेज में भी गैस आ रही है, लतरार रोड पे भी गैस आ रही है, लेकिन गैस का बहरान है, कुछ अंदाज़ा है? होगा, मेरे इल्म में तो इतना नहीं है। आप टीवी नहीं देखते? टीवी पे होगा, मेरे घर में नहीं है जी। अच्छा, टीवी पे होगा, पाकिस्तान के अंदर भी होगा, लेकिन आपके घर में नहीं है। आपको मेरे घर में नहीं है, मेरे दफ्तर में नहीं है। अब टीवी पे होगा जिधर। इर्द गिर्द में जब लोगों के साथ बैठती हैं, जो पब्लिकली इश्यूज डिस्कस होती हैं, अवामी मसाइल सामने आती हैं, डिबेट्स होती हैं बाकायदा तौर पे, क्या लगता है पाकिस्तान किस सिमत में जा रहा है? मुझे लगता है ठीक जा रहे हैं। अपनी सोच है, अपनी नज़र है। अब हमें इतनी समझ तो नहीं है ना, जितनी अपनी समझ है उस पे मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि मेरे ख्याल से ठीक जा रहे हैं। ठीक है जी, इनका कहना है कि बेहतर जा रहा है, बेहतर सिमत में चल रहा है, और इसी बेहतरी सिमत में ये चलने की क्या मामला चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, खाना शाना खा गया है? Sorry, I can't speak Urdu. ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आंटी आप? ठीक ठाक? हाँ शुक्र अल्लाह। बड़ी तसल्ली से सुकून से बैठी हुई हैं धूप में। ये बताएं कि घर में गैस आ रही? नहीं बेटे, गैस सुबह नहीं आती। कब आती है? 10-11 बजे से बाद थोड़ी आती है। बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं तो नाश्ते से बगैर, बड़े जो बच्चे जाते हैं वो भी नाश्ते से बगैर। तो कैसे गुजारा करते हैं? सिलेंडर क्या है? सिलेंडर के साथ सिलेंडर, हाँ और क्या है, ये बस छोटे छोटे बच्चे हैं, नहाना धोना खाना पीना, बहुत सारे सर्दियों में तो वैसे भी बहुत सारे काम करते हैं। चलो मेरा बेटा, इतने तो देना कि गुजारा तो हो ना। कह रहे 3 टाइम तो हम दे रहे हैं। पता नहीं केड़ा 3 टाइम किस टाइम पे अवेलेबल है? जिस टाइम बच्चों को स्कूल का टाइम खत्म हो जाता है फिर गैस आ जाती है। जब स्कूल का टाइम चाहिए होती है, जब उस टाइम गैस ही नहीं होती। उस टाइम गैस नहीं होती, मतलब आपको हुकूमत तो कह रही कि 3 टाइम हम दस्तयाब कर रही है ना हम, लेकिन शायद यूज ज्यादा होने की वजह से चूल्हे में बिल्कुल नहीं आती। बच्चों का सुबह नाश्ता ही नहीं बनता स्कूल का, तो कैसे भेज पाते? ये सिलेंडर वगैरह यूज करते हैं। सिलेंडर से गुजारा हो जाता है, मतलब रिफिल उसको नहीं, सिलेंडर से किधर गुजारा होता है? जो गैस की हीट होती है वो सिलेंडर की हीट नहीं। बच्चों का दूध बॉईल करना, बच्चों को पानी गर्म करके नहलाना, सिलेंडर वगैरह थोड़ा बहुत यूज करते हैं, राड यूज करते हैं, प्रॉब्लम सामने इशू होता है। बजट डिस्टर्ब होते हैं, बजट पहले होता है बेटे, होता है। अभी तो कह रहे हैं गैस के बिल ही ज्यादा आएंगे, गैस नहीं देंगे फिर भी बिल ज्यादा आएंगे। थोड़ा सा अंदाजा होगा ना कितनी कीमती चीज हम इस्तेमाल। हाँ ना, मैसेज क्या देना चाहेंगे, क्या देगा? मैं यही दे रही हूँ इमरान खान को कि देखो सब ने वोटें दी है ना, तो आवाम को रिजीत दें। जो है महंगाई भी उसने इतनी कर दी है, बिजली के बिल, गैस, खाना पीना सब कुछ, मतलब बहुत उसने परेशानी डाली है। तो उसको लिहाजा उसको कहो कि माएँ कहती हैं बच्चे तुम आवाम के लिए कुछ अच्छा कर दो कि दुआएं तुझे मिलें।
ठीक है जी, माएँ कहती हैं आवाम के लिए अच्छा कर दें, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को दुआएं मिलेंगी और ये पैगाम जो है वो हमने दे दिया है ताकि ये पैगाम पहुंचे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब तक। उन्होंने कहा घबराना नहीं है, मामलात मुश्किल हैं लेकिन नामुमकिन नहीं है, उनको हल की तरफ ज़रूर लेकर आया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सुबह जब दफ्तरी औकात होती हैं, आपके घर से बाहर निकलते हैं, गैस आती है? जी अभी थोड़ी थोड़ी आ रही है, प्रेशर बहुत कम है। नाश्ता करके आती है घर से? जी जी नाश्ता करके जाते रात को घर जाके खाना मिलता है? हैं। जी जी माशाल्लाह मिलता है। जो गैस की अदम फराहमी के हवाले से मसाइल हैं, उनके हवाले से क्या कहें? सर्दियों में तो ज़ाहिर बात है गैस की शार्टेज हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मसाइल हो जाते हैं। इस दफा तो हुकूमत ने एलानिया क्या की? ऐलानिया कर दिया उससे कि उसके लिए पहले ही हम तैयार हो चुके हैं। आपने मतलब ना घबराने के हवाले से ज़हन बना लिया था? ये तो पिछले 3 साल से हम पे ना घबराने की वजह से घबरा गए हैं। अच्छा। अब बहुत कुछ हो गया है। अभी आपको क्या लगता है कि इनिशियल क्या होना चाहिए? लगता है ये हुकूमत को इसमें कामयाब होगी, वो वैसे साल डेढ़ जो है उसका रहता है वो वैसे गुजार देगी। इसी तरीके से पॉलिसीज बना पॉलिसी बना के हमें ना घबराते घबराते इलेक्शन आ जाएगी, फिर कहेगी आपकी मर्जी है, घबराए ना घबराए, आने वाली हुकूमत ही आपसे कह रहे हम अगले 5 साल भी हुकूमत करेंगे। तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज है। आपने वोट किसको दिया? मैंने किसी को नहीं दिया था, मेरा वोट सिंध में है तो मैं इधर ही ड्यूटी पे था, मेरी जॉब ड्यूटी पे था इसलिए वोट दिया ही नहीं था, मेरी इमरजेंसी में ड्यूटी लगी हुई थी। अभी आप जब आपस में लोग बैठती हैं, दोस्त बैठती हैं, मसाइल डिस्कस होती हैं, तो क्या आप लोगों को ये सोच आती है होना क्या चाहिए? सोच यही आती है जिसने वोट दिया तो वो पछता रहा है। अक्सर हमसे ही पूछते हैं कि आपने वोट दिया। सिंध की क्या सूरत है हाल? सिंध में काफ़ी बेहतरी है, हमारे यहाँ उधर गाँव में गैस आती है, इस हवाले से गैस के मसाइल के अलावा ओवरऑल अगर सूबाई सतह पर सिंध में कितने सालों से पीपल्स पार्टी की हुकूमत? उसके अलावा पूरे पाकिस्तान में एक जैसे मसाइल है। मैं सिंध से लेके पंजाब भी घुमा हूँ और कैपिटल भी घुमा हूँ, सब ये एक जैसे ही मसाइल हर जगह। ये नहीं कि इधर मसाइल और उधर, इधर भी हेल्थ के वही मसाइल है जो सिंध में है, पंजाब में भी वही है। पंजाब में मैं आधे से ज़्यादा घुमा हुआ क्योंकि हमारा बॉर्डर साथ में लगता है। और जो आपके पानी का मसाइल है वो पंजाब में भी वही है, अब इधर भी इस्लामाबाद में भी वही है। इस्लामाबाद के रूरल एरिया में चले जाए, गर्मियों में पानी होता ही नहीं है, वहाँ पे CDA का कोई मतलब लाइन भी नहीं है और ज़ेर ज़मीन पानी नीचे चला जाता है, वहाँ पे काफ़ी मसाइल होता है। यही मसाइल पंजाब में भी है, सिंध में भी है। और पूरा ओवरऑल देखें तो पाकिस्तान के सारे मसाइल एक जैसे हैं, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, महंगाई हो, ये सारा कुछ एक ही होता है। सारे मसाइल एक ही तरह की और इन मसाइल से नबरदाज़मा होने के लिए आवाम क्या ज़हनी तौर पर तैयार है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गैस आ रही है आपके घर में? जी बिल्कुल अभी है, लेकिन बहुत ना होने के बाद, यानी अगर एक चूल्हा जलाते हैं तो दूसरा नहीं जलता। मतलब ऑल द टाइम की सिचुएशन रहती है? कह सकते हैं, क्योंकि मैं खुद जॉब करती हूँ तो सुबह के टाइम पे ज़रूरत होती है या शाम को होती है, तो उस टाइम पे बिल्कुल मद्दम होती है कि हमारा एक ही चूल्हा जलता है। हीटर अगर जला लें तो चूल्हा नहीं जलता। तो फैमिली को मैटर्स को, सब फैमिली मेम्बर्स को कैसे लेकर चलने के हवाले से मुश्किल नहीं पेश आती? जाहिर है आती तो है, बल्कि मैं तो सोच रही थी कि आप कोई बिजली का कोई वो देख ले, इंडक्शन कुकर वगैरह, कि चलो एटलीस्ट हमारे पास अगर गैस का नहीं, क्योंकि हमें आपको पता है कि ऑफिस के लिए भी निकलना होता है, बच्चों को भी भेजना होता है, तो उस टाइम पे अगर एक चीज़ नहीं चल रही तो बंदा किस तरीके से करे। हालांकि हमारे इस एरिया में पहले नहीं जाया करती थी, लेकिन ये अब एरियाज काउंट करती हैं। आप जब निकलते हैं घर से तो नाश्ता करके ना निकले, सारा दिन वैसे ही फिर काम नहीं होता है, क्या फील होता है? बेसिकली नाश्ते के हिसाब से या कुकिंग के लिहाज से देखा जाए तो लेडीज़ देखते हैं उस मामलात को, लेकिन हम इन्वॉल्वमेंट ये होती है कि चीज़ आ ही नहीं रही तो हमें ये कहता है कि जल्दी करें, लेट हो रही है, तो वो जी गैस कम आ रही है, हीटर बंद कर दें। हीटर बंद करने पे भी एक पराठा बनाते हुए ये बनाते हुए बड़ा टाइम लगता है। दूसरी बात ये, इन्होंने जो तरीकाकार मेरे ख्याल में अपनाया, ये 3 माह 2 माह पहले आके हर घर के ये टाइट कर रहे थे कि जी गैस लीक हो रही है। तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्यों ये टाइट कर रहे हैं, गैस लीक हो रही है? मैंने कहा कोई नहीं लीक हो रही, मैं रोज़ निकलता कोई स्मेल आए, कोई फील हो, तो वो इतना टाइट करके गए। ये क्या उनका प्रोसीजर है मुझे नहीं पता। जब से वो गए उस दिन के बाद से पूरी गली में ये इशू, मेरा पारा पहली गली में इस्लामाबाद में हम रहते हैं, तो यहाँ पे कभी आज तक गैस का इशू नहीं आया। हम 12 साल से यहाँ रह रहे हैं। और से डिस्कस किया ये टाइट करने का जो पॉइंट आप मैंने वैसे डिस्कस किया, हर बंदा यही कह रहा है कि तब से हमारे पास भी इशू, हमें लगा कि नॉर्मल ही कोई प्रॉब्लम है। कोई तरीकाकार इन्होंने किया, एक तो मीटर सारे चेंज किए,
दूसरा उन्होंने ये जो कुछ दिनों बाद आके जी वो गैस लीक हो रही थी तो हमने टाइट करने आया, उसके बाद उन्होंने किया। मैंने उसके बाद 2 दफ़ा कंप्लेन भी किया, आए हैं जी ठीक है कुछ भी नहीं है। मैंने कहा गैस नहीं आ रही, वाइफ मुझे कहती है गैस कम है, आप देखें किसी ने कुंडी वगैरह डाली है क्या। मैं गया हूँ जहाँ पाइप आ रहा है सारों को टच करके चेक करके किया, कहीं पे भी कोई इशू नहीं। बिलों के हिसाब से क्या सिचुएशन, बिल उसी रेशो के साथ? बिल तो बहुत ज़्यादा हो गया जी गैस का। अगर देखा जाए तो नॉर्मल एक बंदे का आ रहा था, इन केस मैं फॉर एग्जांपल करूँगा कि 200, अब वो उसका है 600। तो जो पहले 1000 तक जाता था गर्मी सर्दियों के अंदर टॉप के सीज़न में, अब वो जाता है 3000 प्लस पे। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है जी गैस। अभी तो गैस की शॉर्टेज के हवाले से शुरुआत है, आगे आगे सर्दी बढ़ेगी, ज़रूरियात बढ़ेंगी, मसाइल ज़्यादा होंगे, तो क्या पैगाम क्या देना चाहिए? पैगाम तो ये देना चाहूँगा कि नाअहल तरीन बंदा है, हमने उनको बहुत सपोर्ट किया है, बहुत वोट दिया था, एक वोट उनको दिया था। लेकिन ये कि बहुत क्या कहते हैं कि अब किसी को बताते हुए भी शर्म आता है बंदा कि आपने भी नहीं वोट दिया था? नहीं मैंने नून लीग एक ही घर में है, वाइफ ने दिया, सॉरी वाइफ ने दिया है नून लीग को, हस्बैंड ने दिया है पीटीआई को। तो अब इस मामले पे इशू को लेके कभी घर में बहस हुई है? तुमने वोट दिया, जिनको दिया तुम्हारी वजह से ये मसाला होता है कि ये आपकी हुकूमत ये कर रही है और वो मुझे कहते हैं तुम्हारी हुकूमत ये। अच्छा ऐसी डिबेट होती है? हाँ होता है डिबेट, मजाकन कभी कभी हो जाता है। लेकिन अब हम तो ज़ाहिर है फैमिली है तो मजाक के हद तक रखते हैं। लेकिन ये कि हालात तो इन्होंने बहुत ख़राब कर दिए हैं, बहुत ज़्यादा। एक चीज़ ऐसा पंडोरा बॉक्स खोल के जाएंगे, ज़ाहिर है उनका अब दोबारा चांस ना होने के बराबर होना ही नहीं। सालों के मसाइल है ना, सालों के मसाइल को कंट्रोल करने में सख्त पॉलिसीज अपनानी पड़ी है। जैसे दवाई देता है डॉक्टर कड़वी ठीक करने के लिए, तो ये कड़वी दवाइयाँ आवाम के लिए ये बहुत बड़ी कड़ी दवाई है जो ना ठीक होने वाली है। पंजाबी में कहते हैं नीलत होता हमें खिला के जा रहे हैं, जिनको बचने के चांस बहुत कम है। ऐसे पंडोरा बॉक्स खोल के जा रहे हैं कि जो ना संभलने वाला है। अब और बहुत चीज़ें हैं इसमें पता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बंदा नहीं बोलता। बहरहाल प्रॉब्लम है बहुत। आटा दाल चीनी गैस बिजली इसी में ही फंसाया हुआ आवाम को, वो इसके अलावा क्या सोचे। अच्छा है ना, आरे लगेगी आवाम, वही कह रही हूँ ना, हमें तो बस इसी काम में फंसाया हुआ। या तो कोई और हमारे पास ऑल्टरनेट होता कि चले इससे अब आगे सोच सके बंदे, वो तो बंदा सोच ही नहीं सकता ना। अभी भी हम ये हाउस लोन के लिए घूम रहे हैं, कभी कोई एरिया आता है तो कभी नहीं आता। किसी का वो कहते हैं यानी सब्सिडी भी पता नहीं किसको मिलते हैं या लोन किसको मिलते हैं, हम तो अभी तक घूम ही रहे हैं। ये आवाम के मसाइल हैं, आवाम की परेशानियां जो आपने जानी है, और इसी तरीके से जो सोच है वो सामने आ रही है। उनका यही कहना है कि ये जो मुश्किलात हैं, आटा रोटी दाल चीनी बिलों के हवाले से जो मसाइल हैं, रोज़मर्रा मामूलात ज़िंदगी किस तरह से गुजारने, इन्हीं मसाइल में आवाम उलझ कर रह गई है। और हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि इंतज़ार करें। इस प्रोग्राम में हमने बहुत सारे व्यूज़ इकट्ठे करने की कोशिश की कि आवाम सोच क्या रही है। कहीं पे कहा गया है कि बेहतरी है और इंतज़ार का मादा मौजूद है, लेकिन बहुत सारे जो व्यूज़ सामने आए हैं, आवाम ने यही कहा है कि उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। दिन ब दिन मसाइल बढ़ते जा रहे हैं और अवामी मसाइल जो है उनका तदारक करना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए अव्वलीन तरजीह होना चाहिए, जिसमें सबसे पहला जो काम करना होगा हुकूमत को वो है अवाम को रिलीफ देने के हवाले से। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, चाहते हैं अपनी मेज़बान इरम चौधरी, कैमरामैन मलिक निकाश को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।